मेरे को लगता था कि आज पंजाबियों का दिल जीत लेंगे, क्योंकि नफरत करते हैं बीजेपी से पंजाब, नफरत करते हैं प्रधानमंत्री जी से। Prime Minister Narendra Modi conducted an aerial survey of Punjab's flood-affected areas on September 8 and announced rupees 1600 crore for assistance, in addition to rupees 12,000 crore already available under the relief funds. But the announcement has drawn sharp criticism from the opposition, calling it inadequate. Well, the scale of destruction in Punjab is more than what happened in the 1988 flood. And therefore, the quantum of support which is required is much more than the 1600 crores and the 12,000 crores which are available with Punjab under the Calamity Relief Fund, because lives and livelihoods have been destroyed, livestock has been swept away, some ostensibly even to Pakistan. Public infrastructure, schools, roads, colleges, hospitals have been damaged, private infrastructure has been damaged. So the scale of devastation is enormous. In fact, if I remember correctly, at that point in time in 1988, Prime Minister late Rajiv Gandhi had announced a package of $1 billion odd rupees, 1,000 crores for Punjab. And so 1,000 crores in 1988 in today's value would be much more than the 16,000 crores which has been, or the 1,600 crores which has been announced by the Prime Minister. So therefore there is a need to really assess the scale of devastation and try and help those people who are in real need, whether it is Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh or Punjab. Governor of Punjab, Gulab Chand Kataria, met CM Bhagwant Mann, who is hospitalized, with the PM's message. Post the meet, he indicated that the situation is still being assessed and more relief will follow. पहले से काफ़ी अच्छी बताते हैं, लेकिन मैंने कहा एक आध दिन और रुकना हो तो रुक जाओ, जल्दी करने से कोई लाभ नहीं है। पर वैसे ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने क्या ब्रीफिंग हुई, क्या पीएम साहब से बातचीत हुई, तो मैंने कहा हर दृष्टि से पॉजिटिव है। ये तो केवल 1600 करोड़ टोकन दिया है। असेसमेंट के बाद जो भी किसान को मैक्सिमम मदद की जा सकती है, घरों को किया जा सकता है, पशुओं का लॉस हुआ उसको किया जा सकता है, मकान टूटे हैं उसका किया जा सकता है, सभी दृष्टि से पॉजिटिव। और कल उन्होंने जो देखा है उसमें उनको हिमाचल से भी ज़्यादा गंभीर स्थिति जो है ना वो पंजाब के, और विशेष करके तो वो एक तरह से ये जो हमारा 4-5 जिले हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। मैं सोचता हूँ कि केंद्र का मदद करने का एक फॉर्मूला है। जो आपदा का राहत का पैसा होता है वो तो अपने आप ही सब स्टेट के खाते में चला जाता है, जो उनका शेयर है, चाहे केवल हम आपदा आए या ना आए तो भी वो उसके खाते में जाके जमा होता ही है। लेकिन जब इस प्रकार की विशेष परिस्थिति बनती है तो उसका असेसमेंट करने के लिए विभिन्न एजेंसी आती है और विशेष करके केंद्र की टीम आती है। वो टीम सारा मौका मुआयना करके जाती है, यहाँ की डीसी और बाकी की रिपोर्ट को भी सारा देखा जाता है कितना एरिया, लेकिन अभी सारा आंकलन एकदम नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ पानी का लेवल कम होकर के काम में आने लगी, तो वो उस सबको देख करके असेसमेंट करेंगे। मैक्सिमम उन्होंने कहा कि मैं किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रखूंगा, जो भी यहाँ के लोगों की और किसानों को मदद हो सकती है वो केंद्र सरकार करेगी। और राहत आ सकती है जी, और राहत 100% आएगी। ये तो खाली टोकन है कि अभी चलते हुए जो काम है जिसके कारण से इमरजेंसी काम चल रहे हैं उसमें एक तरह से ये टोकन पैसा है, बाकी तो सारा असेसमेंट होने के बाद आएगा। Earlier, Prime Minister Narendra Modi conducted an aerial survey of Punjab and Himachal Pradesh and met the senior officials to discuss the extent of damage due to the floods. He also met with the victims and announced the immediate relief of rupees 1,600 crore in fresh financial assistance. But the state Congress president has given shocking reactions to the relief announcement. और ये मजाक वाकया में ही हमारे साथ मजाक हुआ। मेरे को लगता था कि आज पंजाबियों का दिल जीत लेंगे, क्योंकि नफरत करते हैं बीजेपी से पंजाब के लोग,
नफरत करते हैं प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि हमारे को आज तक हमारे को एमएसपी की गारंटी नहीं मिला है। हमें तो ये था कि आज प्रधानमंत्री जी आ गए, आज पंजाबियों को खुश करके जाएंगे, कम से कम 50,000 करोड़ तो देते। आज अखबारों में एक पुरानी खबर और फ्रंट पेज की न्यूज घूम रही है और उसमें लिखा है, राजीव गांधी की फोटो है, अजीत अखबार है यहाँ का ट्रेडिशनल 1988 का अखबार है, तो वो घूम रहा है सोशल मीडिया पे। 1 अरब का मदद उस समय 1988 में राजीव गांधी ने की थी, तब कोई सरकार नहीं थी, तो मदद इसलिए की। और पानी भी इतना नहीं था, लोग बताते हैं कि 1988 से अब ज्यादा डबल पानी आया है। तो 1200 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था जब मिस्टर जाखड़ यहाँ के ऑपोजिशन लीडर थे। तो ये कौन सी राहत हुई? हेलीकॉप्टर से घूमो, 15 बंदों को मिलो, अपने ही लोगों के मिलके राहत घोषित कर दो। लोग ऐसे काम नहीं चलेगा। आप कहोगे कि एनवायरनमेंट की वजह से, आपकी माइनिंग की वजह से, तो आप क्या कर रहे थे? एनवायरनमेंट क्लियरेंस कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। देखो 1600 करोड़ रुपए का ये तो वो बात हुई कि ऊंट के मुंह में जीरा, तबाही होगी। 4.5 लाख एकड़ चली गई हमारी जमीन, 2.5 लाख से ऊपर हमारे पशु प्रभावित हुए, कमरे गिर गए, घर गिर गए, लोग मर गए, घरों में पानी चला गया, बहुत भारी नुकसान हुआ है। अभी सिल्ट चली गई खेतों के अंदर, तो 1600 करोड़ से कुछ नहीं होगा। अभी तो पता चलेगा 1600 करोड़ का ऐलान किया है आपने, काय के लिए पैसा दिया है। जब पैसा आएगा तब पता चलेगा कि वो काय के लिए। Meanwhile, many have come forward to support flood victims of Punjab. बहुत प्रभावित हैं, लेकिन उनका जुनून बड़ा कमाल का है। जब कल हम लोग कुछ गांव में गए, कुछ दिन पहले मालविका बहुत सारे गांव में जाके आई, तो हर किसी से एक ही नीड मांगी, लेकिन आप विश्वास करिए जिस घर में जाते हैं सबसे पहले पूछ के कि क्या आप पियेंगे, क्या खाएंगे। चाहे उस घर की किचन की छत नहीं है, लेकिन एक जुनून है, एक जज्बा है, वो पंजाब को पंजाब बनाता है। और बस यही कहूँगा कि ये जो मदद का जो कारवां है, अगले 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन का नहीं है, ये कुछ महीनों का है, शायद साल भी लग जाए। लेकिन जो लोग भी कर रहे हैं बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। लगे रहना जब तक पंजाब वापस अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। 22 trucks carrying relief materials from BJP's Delhi government also reached Jalandhar for the flood-affected victims. As Punjab battles one of the worst ever flood crises, the AAP-led state government also continues to demand greater relief from the centre. With rising political tempers and mounting losses on the ground, all eyes remain on the Prime Minister Modi's next move before the political storm deepens further.